Welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Dear friends, we are discussing power plant engineering. This is our 33rd lecture. Today we will discuss tidal energy and wave energy. So you can see tidal energy and wave energy today we will discuss. Friends, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी सब कहाँ से आती हैं? ऑल दीज आर ए टाइप ऑफ ओशन एनर्जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज ओशन एनर्जी, देन वी कम टू द टाइडल एनर्जी एंड देन द वेव एनर्जी. तो ओशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, ओशन एनर्जी सोर्सेज में भी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज. तो मतलब ओशन में जितनी भी एनर्जी है उसको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं? वन इज टाइडल एनर्जी, सेकेंड वन इज द वेव एनर्जी, third one is ocean thermal energy conversion, which is known as OTEC in short, and fourth one energy emitted from the sun ocean system by evaporation, that is hydrological cycle. So आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज फर्स्ट टू टाइडल एज वेल एज वेव एनर्जी. इन दो को आज हम डिस्कस करेंगे. सो टाइडल एनर्जी के बारे में अगर हम बात करना चाहें, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर लेवल ऑफ सी ड्यू टू एक्शन ऑफ द सन एंड मून ऑन वाटर of the earth is called tide. Tide आपको पता होगा, high tide and low tide. There are two tide, high tide as well as low tide. So जो high tide है, low tide है, इन दोनों को मिलाकर के हमने कहा tide formation. So ये tide क्यों फॉर्म हो रही हैं? These tides are formed because of the action of the sun and moon on the water of the earth. Tidal energy can furnish a significant portion of all such energies which are renewable in nature. The large scale up and down movement of sea water represent an unlimited source of energy. If some part of this energy can be converted into electrical energy, it would be an important source of hydropower. I told you it would be an important source of hydropower. So it is hydropower, friends. It is a type of hydropower. The main feature of tidal cycle is the difference in water surface elevation of high tide and low tide. If this differential head could be utilized in operating a hydraulic turbine, the tidal energy could be converted into electrical energy by an attached generator. So high tide and low tide, two tides हैं. So there is a level difference between high tide and low tide. ये जो level difference है, इस level difference को आपने use करना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. बिल्कुल सेम ऐसे ही यूज़ करना है जैसे आप हाइड्रोलिक पावर प्लांट में यूज़ करते हैं. राइट, टाइडल पावर की बात करते हैं. When a basin exists along the shores with high tide, the power in the tide can be hydroelectrically utilized. This can be realized by having a long dam across the basin and locating two sets of the turbines underneath the dam. As the tide come in, water flow into the basin, one set of turbine. At low tide, water flow out the basin, it operates and second set of the turbine. So in this way, as whenever water is coming into the basin, whenever water is going out to the basin, both the time turbine will operate and it will give you the electricity. Now if you are talking about the main component of the tidal power plant, so the main component of the power plant, main component, ध्यान रखना, these are not the all component, these are the main component. The first one is dam or dike to form the basin. Dike क्या होता है? Dike means low wall. The function of dam or dike is the same as in hydraulic power plant. It is just to form a barrier between the sea and the basin or between the two basins in case of multiple basin system. इसके बाद second one है sluice ways. Sluice ways means they are used to fill the basin during high tide or empty the basin during the low tide. They are, you can say they are just like gates as per the requirement. These devices are controlled through the gates. पावर हाउस. अगर हम पावर हाउस की बात करें फ्रेंड्स, पावर हाउस क्या है? अ पावर हाउस हैज टर्बाइन, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड अदर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स. बेसिकली यू कैन से सारा कंट्रोल पैनल जो है वो यहाँ पर है. एज फार एज पॉसिबल द पावर हाउस एंड स्लूइस वेज शुड बी इन अलाइनमेंट विद द डैम और डाइक. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइडल पावर प्लांट. अगर टाइडल पावर प्लांट की क्लासीफाई करना चाहें तो they can be single basin and double basin. So this is the based on the number of basin. अगर सिंगल बेसिन की हम बात करें, सिंगल बेसिन अरेंजमेंट पावर कैन बी जनरेटेड ओनली इंटरमिटेंटली.
In this arrangement only one basin is interact with the sea. The two means sea as well as basin, the two are separated by a dam or dike, and the flow between them is through the sluice way located conveniently along the dam. The rise and fall of the tidal water level provide the potential head. You can see the diagram. See in the diagram there is a basin, ये एक basin बनाया हुआ है. This is the dam or you can say dike. ठीक है, ये sea है. So whenever water is coming into the tide, this generator, hydraulic turbine generator, this generator will operate, right? Now यहाँ पर वाटर कब तक आएगा? जब तक यहाँ पर हाई टाइड है, वाटर का लेवल अप हो रहा है, सो यहाँ पर वाटर का लेवल अप होगा. व्हेन लेवल ऑफ बोथ विल बी सेम, सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द वाटर, राइट. इसके बाद क्या होगा? ये स्टॉप हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम व्हेन एवर देयर इज ए लो टाइड, सो जैसे ही इसके लेवल से नीचे टाइड आएगी, इसके लेवल से नीचे लेवल हो गया, बेसिन के लेवल से नीचे, सो वाटर इज कमिंग फ्रॉम द बेसिन टू द सी. सो अगेन देयर विल बी electricity generation through this turbine and generator. Now total time for one high tide and one low tide is approximately 12 or 50 minutes. Means approximately you can say in a day of 24 hours there will be 2 high tide and 2 low tide. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स डबल बेसिन अरेंजमेंट की. अभी क्या सिंगल बेसिन में क्या है, पावर काफ़ी कम जनरेट हो रही है, इंटरमीडिएटली जनरेट हो रही है पावर, सो गैप ज़्यादा है. सो अब इसके लिए क्या किया गया, एक डबल बेसिन टर्बाइन यूज़ किया गया सो दैट ज़्यादा पावर यूज़ की जा सके. सो डबल बेसिन एज द नेम इंडिकेट, डबल मीन्स टू, दो. सो देयर आर टू बेसिन्स एट डिफरेंट लेवल. वन इज नोन एज अपर बेसिन, अदर इज नोन एज लोअर बेसिन. अ डैम इज प्रोवाइड बिटवीन टू बेसिन्स and turbine are located in the dam. The sluice gates are provided in the dam. The high level basin gates are inlet gate and low level gates are outlet gates. मीन्स जो टर्बाइन है, जो हाई लेवल पर टर्बाइन बेसिन है, हाई लेवल के बेसिन में जो गेट्स लगाए हैं उनको इनलेट गेट कहेंगे, जो लोअर बेसिन में गेट लगाए हैं उनको आउटलेट गेट कहेंगे, राइट. व्हेन द वाटर लेवल इन द अपर बेसिन, मीन्स जब वाटर का लेवल अप हो रहा है, सो वाटर बेसिन ए नाम दिया है हमें. देखिए डायग्राम आपको पहले मैं दिखा दूं. यहाँ पर दो बेसिन हैं. अपर बेसिन को हमने नाम दिया है ए और लोअर बेसिन को नाम दे रहे हैं बी, राइट. सो व्हेन द वाटर लेवल इन अपर बेसिन ए प्रोवाइड ए सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ हेड बिटवीन द टू बेसिन्स, द टर्बाइन आर स्टार्टेड. व्हाट इज इट मीन? अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा. ये the water flows from the basin A to basin B through the turbine and power is generated. The power generation thus continues simultaneously along with the filling of water in the basin A. When the tide attains its peak value, the water level in the basin A is maximum and inlet gates are at this time will closed. The water flow from the upper basin to the lower basin through the turbines. Clear? Thus water level in the upper basin falls and in the lower basin rise. When the level in the lower basin become equal to the level of falling tide, the outlet sluices are opened, and when tide is lower most level, the outlet gates are closed. After some time the tide rise, the cycle will continue, right. अब देखिए in this case the advantage of this system is that power can be generated continuously during discharge and filling of basins. However, in this method also power generated may not coincide with the peak load demand. This problem can be overcoming by the pumping water by other means from lower basin to upper basin during the peak power demand. अब देखिए इन दिस केस ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, अभी क्या है लोअर बेसिन है, ये अपर बेसिन है. इनिशियली क्या है, मान लेट एक सिचुएशन आप एज्यूम करिए कि जो दोनों बेसिन खाली हैं, एम्प्टी हैं दोनों बेसिन. सो जब दोनों बेसिन एम्प्टी हैं और हाई टाइड का टाइम हो रहा है, तो ये जो आउटलेट गेट है इसको क्लोज कर दिया. नाउ हाई टाइड इज देयर, द लेवल ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी इंक्रीज. सो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर का लेवल यहाँ तक आ जाएगा. इस एट दिस टाइम इनलेट गेट्स विल बी ओपन. इनलेट गेट जैसे ही ओपन होंगे इसके अंदर वाटर फिल होना शुरू हो जाएगा. ये गेट क्लोज है, ध्यान रखिए, दिस गेट इज क्लोज, दिस गेट इज ओपन, वाटर अलाउड किया हुआ है यहाँ से. सो वाटर इज एंटरिंग इनटू द अपर बेसिन और अपर बेसिन से ये वाटर लोअर बेसिन में जा रहा है थ्रू द
टर्बाइन एंड जनरेटर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है एंड इट इज़ कंटिन्यूसली, जब तक ये बेसिन पूरा भर नहीं जाता। और ये बेसिन कब भर जाएगा पूरा, जब बेसिन की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी और जो लेवल है हाई टाइड का वो भी इसके बराबर इक्वल और इससे ज़्यादा हो जाएगा। एट दिस टाइम ये जो गेट्स हैं इसको हम अभी बंद कर सकते हैं, बट अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि उस समय भी इसको हम बंद नहीं करते। The capacity of lower basin is much more than the capacity of upper basin, means water is entering into the upper basin and going to the lower basin through the turbine. जब तक हाई टाइड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर हाई टाइड के बाद लो टाइड शुरू होगी, जब लो टाइड शुरू हो रही है राइट, और जैसे ही टाइड का लेवल, लो टाइड होते टाइम टाइड का लेवल बेसिन के लेवल के बराबर आ जाता है, एट दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लोजिंग दिस गेट। ध्यान रखिए, हाई टाइड हो रही है, हाई टाइड के टाइम पर वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टरबाइन रन कर रहा है। हाई टाइड ऊपर रहेगी, जब तक वाटर का लेवल ऊपर रहेगा वाटर विल एंटर इनटू द अपर बेसिन, अपर बेसिन फिल रहेगा और वाटर टरबाइन से क्रॉस करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही लो टाइड शुरू होगी, ध्यान रखना, जैसे ही लो टाइड शुरू होती है, जैसे ही एट दैट टाइम इसको क्लोज कर देंगे हम, गेट को क्लोज करने से क्या होगा, जो अपर बेसिन है, अपर बेसिन में वाटर कंप्लीटली फिल है। एट दैट टाइम लो टाइड शुरू हो चुकी है और इस समय अपर बेसिन फिल है, तो अपर बेसिन से वाटर जो फिल किया हुआ है अपर बेसिन में, यानी बेसिन ए में, बेसिन ए से वाटर बेसिन बी की तरफ आएगा इस जनरेटर के थ्रू, और धीरे धीरे वो सारा वाटर बेसिन बी में फिल हो जाएगा। नाउ देयर इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द लो टाइड, लो टाइड कंटिन्यू है, और जैसे ही लो टाइड का लेवल इस गेट से नीचे आता है, इस गेट को ओपन कर देंगे सो दैट ये जो वाटर है ये सारा बाहर आ जाए। इन दिस वे डियर फ्रेंड्स, इन दिस वे maximum time we can use the system, electricity generation can be maximum time, but I told you it is not necessary कि यहाँ पर peak power generation हो या जितनी पावर की डिमांड है उतनी जनरेशन हो, या दोनों बेसिन खाली हो गए हैं उसके बाद हमें स्टॉप करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि दोनों बेसिन खाली ना हो और कंटिन्यूस पावर जनरेशन हो, सो वी हैव टू मेक सम अल्टरनेट अरेंजमेंट सो दैट ये जो वाटर यहाँ पर अवेलेबल था ये वाटर को वापस यहाँ पर पंप कर सके, और वापस पंप किया फिर से टर्बाइन के थ्रू क्रॉस किया। सो वी हैव टू मेक सम अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइडल पावर प्लांट। तो देखिए एडवांटेज ये है टाइडल पावर प्लांट का, इट इज़ कम्प्लीटली पॉल्यूशन फ्री, कोई पॉल्यूशन ही नहीं हो रहा इसमें, बिकॉज वी आर यूजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून इन द वाटर। एनर्जी इज़ अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको एनर्जी का कोई पैसा नहीं देना, एनर्जी कन्वर्जन के लिए टर्बाइन यूज़ करना है, एनर्जी का कोई पैसा नहीं देना आपने। एनर्जी इज़ अवेलेबल राउंड द ईयर, बिकॉज ये तो हाई टाइड और लो टाइड तो पूरे साल होता है, दिन में एक दिन में 2 बार हाई टाइड आएगा, 2 बार लो टाइड आएगा। आई टोल्ड यू द टाइम फॉर हाई टाइड एंड लो टाइड इज अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर 50 मिनट। सो एवरी 12 आवर 50 मिनट साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा। इट इज़ ए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, it is not affected by rainy season or monsoon because here we are using the energy of ocean, तो ओशन में तो वाटर की प्रॉब्लम ही नहीं है, मानसून से कोई लेना देना नहीं है। लार्ज एरिया ऑफ वैल्यूएबल लैंड इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दीज आर द एडवांटेजेस, बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अब डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, द कैपिटल कॉस्ट ऑफ दिस प्लांट इज हाई एंड नीड्स ए लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइम, ये एक डिसएडवांटेज है। The interest and depreciation component of the generation cost is very high, another disadvantage. The construction of tidal barrage is very high due to very complex problem associated with it, so every location cannot be ideal for installing such type of the system, means आपको जो लोकेशन है वो बड़ी केयरफुली आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। Tidal power output is not uniform throughout the day unless you are using a pump. द प्रोडक्शन इज़ द फॉर्म ऑफ पल्सेज, मीन्स 2 पल्स एवरी डे। आपको मैंने बताया पल्स कितना है, 12 घंटे 50 मिनट का साइकिल टाइम है, सो ईच पल्स इज लास्टिंग अबाउट 4 to 6 आवर। सेडिमेंटेशन ऑफ बेसिन इज ए प्रॉब्लम बिकॉज वेन एवर देर इज अ हाई टाइड सो देर विल बी ए प्रॉब्लम ऑफ सेडिमेंटेशन। सी वाटर इज़ वेरी कोरोसिव इन नेचर, सो आपको जो इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं वो ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करने हैं विच आर नॉट अफेक्टेड बाय द कोरोजन और सी वाटर। मैराइन लाइफ इज़ अफेक्टेड एंड पावर ट्रांसमिशन इज़ कॉस्टली, बिकॉज ये जो आप सेटअप यूज़ करेंगे ये रिमोट लोकेशन पर होगा, जहाँ से पावर ट्रांसमिट करना बड़ी कॉस्टली हो जाता है। यूज़ की हम बात करते हैं, हमने पहले भी आपको बताया था यूज़ क्या है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, अभी फिर बताते हैं।
टाइडल एनर्जी का सबसे जो ज़्यादा यूज़ हम करना चाहते हैं वो चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में. लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, the main use of tidal energy is in the generation of electrical energy. Tidal energy is being used in France to generate 240 megawatt of tidal electricity at very low cost. हर चीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्योंकि मार्केट में जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है दे कैन रन वेरी इजीली ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी अवेलेबल हो सकती है, किसी भी इक्विपमेंट को आप कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, राइट. इसीलिए हम चाहते हैं कि सब कुछ को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाए, ट्रांसमिशन आसान रहेगा, इक्विपमेंट को रन करना आसान रहेगा, यूज़ करना आसान रहता है. सेकेंड यूज इज ग्रेन मिल्स. ग्रेन मिल्स, tidal energy has been used for hundreds of years, just like windmills. Tidal energy were used for the mechanical crushing of grains in the grain mills. Energy storage, tidal energy क्या है? Tidal energy can also be used as a store of energy, like many of hydroelectric dam which can be used as a large energy resources. So tidal barrage with their reservoir can be modified to store energy, provide protection to coast in high storm. कैसे? Tidal barrage can prevent damage to the coast during high storm and also provide an easy transport method between two army of a bay or an estuary on which it is built, right. So these are the uses of tidal energy. Now let's say I am talking about tidal energy worldwide, right. Though many countries are using tidal energy, but a few of them, जैसे मैं बात करता हूँ साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया में एक है शिवा लेक टाइडल पावर स्टेशन हुज जनरेशन कैपेसिटी इज 254 मेगावाट. एक फ्रांस की अगर हम बात करते हैं सो ला रॉन्स टाइडल पावर प्लांट जनरेशन कैपेसिटी 240 मेगावाट. यूनाइटेड किंगडम दैट इज यूके की बात करते हैं तो स्वानसिया बे टाइडल लागून ऑफ कैपेसिटी 240 मेगावाट. स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो मेजन टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ 86 मेगावाट. कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो एनापोलिस रॉयल जनरेटिंग स्टेशन ऑफ 20 megawatts. So this is the list of a few countries which are using tidal energy. So most of the countries are using tidal energy. Now if we are talking about India, so as such as India में presently there is no tidal energy power plant working. वर्किंग की बात करें तो फिलहाल कोई वर्किंग पावर प्लांट नहीं है. एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट दैट आवर कंट्री हैज़ ए पोटेंशियल ऑफ 9000 मेगावाट ऑफ टाइडल एनर्जी. कितना? ध्यान रखना अप्रॉक्सीमेट है, ये भी अप्रॉक्सीमेशन है, एस्टिमेट है ये 9000 मेगावाट. आउट ऑफ दिस 9000 मेगावाट 7000 मेगावाट इन द गल्फ ऑफ कॉम्बे इन गुजरात, 1200 megawatt in Gulf of Kutch and 100 megawatt in Ganga Delta in the Sundarban region of West Bengal. So these are the few possibilities where India can use its tidal energy. इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे वेव एनर्जी की. अब वेव्स क्या है? व्हाट इज वेव? जल्दी से बताइए. यस, differential warming of earth cause pressure difference in the atmosphere which generate wind, and when wind move across the surface of open body of water they transfer some of their energy to water and create waves. ठीक है, इसको याद कर लीजिए ढंग से. differential warming of earth cause pressure difference in the atmosphere which generate wind, and when wind move across the surface of water, open body of water, they transfer some of their energy to the water and create waves. Now following factors determine how strong an individual wave be. कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? स्पीड ऑफ विंड, कितनी स्पीड है विंड की उतनी जो है वेव बिगर होगी. सो द फास्टर द विंड इज ट्रेवलिंग द बिगर अ वेव विल बी. टाइम ऑफ विंड, the wave will get larger the longer the length of the time the wind is hitting it. Distance of wind, अब देखिए सारे विंड से रिलेटेड और बात कर रहे हैं हम वेव की, ध्यान रखना. the farther the wind travel against the wave the bigger it will be, right. Now the density of the energy transported under the waves under the ocean surface is about 5 times higher compared to wind energy at 20 meter above the ground. वेव पावर की बात करते हैं हम.
Wave power is the transportation or transport of energy by ocean surface waves and the capture of that energy to do useful work. यूज़फुल वर्क कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला हमारा यूज़फुल वर्क होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. सो इसको मैंने सबसे पहले लिखा है. यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेंशन इट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इसके बाद और यूज़ हो सकते हैं जैसे वाटर डिसैलिनेशन और पंपिंग ऑफ वाटर इनटू रिजर्वायर. सो यू कैन यूज़ फॉर वेरियस पर्पसेस. A large variety of devices like hydraulic accumulator, wave machine, high level reservoir machine etc. have been developed for harnessing the energy, but these are very complicated and fragile in face of gigantic power of ocean storm. Means ocean storm की जो power होती है उसके आगे ये सब बहुत छोटे हो जाते हैं, बौने लगते हैं और ये जल्दी से destroy हो जाते हैं. ये एडवांटेज की बात करें अगर हम वेव एनर्जी की, तो वेव एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं? अब देखिए वेव एनर्जी जो है, आप अपने आप सोच के बताइए कि पहले इसको हम स्लाइड को हटा देते हैं. अब बताइए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेव एनर्जी. सबसे पहला एडवांटेज, इट इज़ रिन्यूएबल. रिन्यूएबल क्यों है ये? रिन्यूएबल क्यों है जल्दी से बताइए. वेव एनर्जी, वाई वेव एनर्जी इज रिन्यूएबल? बिकॉज इन द वेव एनर्जी वी आर यूजिंग द एनर्जी ऑफ विंड, एनर्जी अवेलेबल इन विंड. व्हेन wind is coming in contact with the water, waves will create, right? और wind कैसे create हो रही है? Wind is created through the sun. Clear? So means it is a part of solar energy. So wave energy is a type of solar energy, wave energy is a type of wind energy, wave energy is a type of ocean energy. So you can say wave energy is a combination of three type of energy: solar energy, wind energy and ocean energy. And all three are the renewable. All three sources are the renewable. Means they can never be finished. So we are saying wave energy is the renewable energy. इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली. एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों है? बिकॉज वेन एवर वी आर हार्नेसिंग, वी आर यूजिंग द वेव एनर्जी, नो पॉल्यूशन इज क्रिएटेड. मीन्स वेव एनर्जी इज कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री. क्लियर है? नाउ you do not have to pay anything for the wave energy. Wave energy is free in nature, no fuel is needed, no waste produced. अब देखिए 3 पॉइंट है यहाँ पर. वेव एनर्जी इज कंप्लीटली फ्री. ध्यान रखिए वेव एनर्जी फ्री है, हार्नेसिंग ऑफ वेव एनर्जी इज नॉट फ्री. वेव एनर्जी का कॉस्ट का पैसा नहीं देना, पर वेव एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा. नो फ्यूल नीडिड, वेव्स को जनरेट करने के लिए नो फ्यूल नीडिड. वेन एवर यू आर हार्नेसिंग वेव एनर्जी, नो वेस्ट प्रोड्यूस. सो कोई वेस्ट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा वेव एनर्जी से. क्लियर? कितने सारे पॉइंट हैं. इट इज़ रिन्यूएबल, इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन नेचर, नो फ्यूल नीडिड टू जनरेट द वेव्स, no waste produced, it less expensive to operate and maintain. Another point, it can produce a great deal of energy and land is not required. सबसे important point है, इसके लिए land की requirement ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये waves के ऊपर है, waves है, waves में ही आपको collection करना है. So land is not required. Disadvantage की बात करते हैं friends. Now सूटेबल टू सर्टेन लोकेशंस. सो हर समय हर लोकेशन पर इसको यूज़ नहीं कर सकते. सो इट इज़ सूटेबल टू सर्टेन लोकेशन. सर्टेन लोकेशंस कौन सी हो सकती हैं? कि वेव्स कंटिन्यूसली अवेलेबल हों. और वेव्स कंटिन्यूसली कब अवेलेबल होंगी? वेन एवर विंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ओपन सरफेस ऑफ द वाटर. सो विंड्स कंटिन्यूस फ्लो होनी चाहिए, एयर कंटिन्यूस फ्लो होनी चाहिए. सो इसलिए ओशन में तो हो सकता है अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए. It can have some effect on marine ecosystem. Whenever you are harnessing the wave energy, it can affect the marine ecosystem. Lack of dependability, relative scarcity of accessible sites of large wave activity. मीन्स जहाँ पर ज़्यादा वेव्स क्रिएट हो रही हैं हो सकता है वहाँ तक हम पहुँच भी ना पाएँ. कंस्ट्रक्शन इज रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड. यस, कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. रिलेटिव ही नहीं कहेंगे, कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको सब कुछ फ्लोटिंग डिज़ाइन करना है. ठीक है?
द डिवाइस हैज़ टू विदस्टैंड स्टॉर्म। अब देखिए जो सुनामी आती हैं, ओशन में स्टॉर्म आते हैं, तो जो भी डिवाइस आप बनाएंगे, दोज डिवाइस मस्ट बी एबल टू वियर द फोर्स ऑफ सुनामी, फोर्स ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। और पावर जनरेशन इज नॉट सो मच हाई। इसके बाद बात करेंगे डियर फ्रेंड्स हम चैलेंज विद वेव एनर्जी। वेव एनर्जी के लिए कौन कौन से चैलेंज है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना स्टॉर्म का, सो मैनी डिवाइस ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्स ऑफ टाइड एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म। बहुत सारी कोशिश की जा चुकी हैं, पर स्टिल क्या होता है कि जो स्टॉर्म आते हैं या जो टाइड की बहुत ज़्यादा फोर्स होती है वो कई बार डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक्सेसिबिलिटी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कैन ऑल्सो बी कॉस्टली। ऐसे साइट्स को एक्सेसिबल करना, इक्विपमेंट्स को मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, ये भी कॉस्टली है। द टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ वेव एनर्जी डिवाइस इज ओनली अबाउट 30%। तो ये मैं हायर साइड बता रहा हूँ, सो 30% के करीब ही एफिशिएंसी इसकी होती है। देयर इज ए पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द मेराइन एनवायरनमेंट। सो ये तो हमने डिसएडवांटेज में बताया था कि मेराइन एनवायरनमेंट पर ये इफेक्ट करती है। सो मेराइन एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। नॉइस पॉल्यूशन could have negative impact if not monitored. So, the noise and visible impact of each design varies greatly. Waveform can result in displacement of commercial and recreational fishermen from productive fishing grounds. मीन्स जहाँ भी आपने वेव फॉर्म लगा दिया, वेव बेस्ड पावर प्लांट लगा दिया, सो वहाँ पर जो फिशरमैन है विच आर कलेक्टिंग फिशेज एंड सी प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस कमर्शियल पर्पज, तो हो सकता है उनको कहीं और जाना पड़े। ठीक है। नाउ वेव कैन जनरेट 2700 गीगावाट्स ऑफ पावर। आउट ऑफ दिस 2700 गीगावाट पावर ओनली 500 gigawatt can be captured with the current technology. So a new technology is required, means current technology is not sufficient. वर्ल्ड की मैं बात करें, अगर हम बात करें तो कुछ कंट्रीज़ में वेव एनर्जी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे मेन एरियाज फॉर वेव फॉर्म आर इन पुर्तगाल, यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए। पुर्तगाल हैज़ वेरी फर्स्ट वेव फॉर्म। कौन सा पुर्तगाल का सबसे पहला वेव फॉर्म? एग्यूकेंडेरा वेव फॉर्म इन द पुर्तगाल हैविंग 2.25 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी। अब देखिए पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा वेव एनर्जी यूज़ हो रही है, और पुर्तगाल का जो सबसे फर्स्ट वेव फॉर्म है उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 2.25 मेगावाट। सो अगर हम वेव फॉर्म लगाते हैं और इस तरह थोड़ी थोड़ी एनर्जी जनरेट करते हैं, हो सकता है रिन्यूएबल के फॉर्म में तो ये सफिशेंट हो, लेकिन दे कैन नॉट बी मीट द डिमांड ऑफ ए सिटी, बट बिकॉज एनर्जी इज अवेलेबल देयर, सो वी कैन कलेक्ट दैट एनर्जी, राइट। अब इंडिया की बात करते हैं हम, वेव एनर्जी पावर प्लांट इन इंडिया। इंडिया में देखिए विजिंजैम वेव एनर्जी पावर प्लांट इन केरला, राइट। वेव एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट है विजिंजैम केरला में। दिस लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 150 किलोवाट पायलट वेव एनर्जी प्लांट इन 1991 इन विजिंजैम। ध्यान रखिए 1991 में 1991 में ही 150 किलोवाट का प्लांट लगा दिया था। कहाँ पर? इन तिरुवनंतपुरम केरला। विंजिन वेव एनर्जी प्लांट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वेव एनर्जी प्लांट, ध्यान रखिए, वर्किंग ऑन ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम टेक्नोलॉजी, OWC टेक्नोलॉजी। सो इंडिया में भी यही पावर प्लांट है, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द वेव एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी।